Hello students, welcome. Now today we will discuss about Coulomb's law and its vector form. In last video we have discussed about charges, its types, origin and much more things on the charges. Now in this I am going to start Coulomb's law. According to Coulomb, if two charges like Q1 and Q2 are placed are distant apart from each other, then the force, electrostatic force between these two charges will be directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So now we have two equations, equation 1 and equation 2. Now from equation 1 and 2, we have F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. Now we will take a constant to remove this proportionality sign. Then it will become F is equals to K Q1 Q2 upon R square. The value of this constant is equals to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. So this is the unit of this constant and the value of this constant is given by k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. So epsilon naught is permittivity of free space. It means that permittivity means that how the electric field and electric forces affected by the medium. Like if this system of charges will be dipped in water, then the forces between them will be changed, decreases by 1 upon 81 times because the permittivity of water will be 1 by 80 times than that of permittivity of free space. Coulomb's law or electrostatic forces is also known as central force. And what are the central force or central law? If the force acting between two bodies or between two charges is along the line joining of the centers of the bodies and charges, then that type of forces are known as the central forces like gravitational force and electrostatic force, magnetic force. These all are the central force क्योंकि हमें सीधा सीधा पता है कि अगर ये दो बॉडीज है, बॉडी वन और बॉडी टू, या चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज Q1 और ये किसी बॉडी पर चार्ज Q2 है, तो जो इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलावा फोर्स लगेगा. हम ये नहीं कह सकते कि इस पर ये फोर्स लग रहा है और इस पर ये फोर्स लग रहा है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन सेंट्रल फोर्स. सो दिस इज अबाउट कूलॉम्स. तो कूलॉम्स लॉ में हमारे पास एक नई चीज आई है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट. So now here we will discuss the value of epsilon naught, unit of epsilon naught and dimensions of epsilon naught. So here we have k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and k is having the unit 1 upon 4 pi epsilon naught is having the unit k की unit क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई की कोई यूनिट होगी नहीं, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. दैट विल बी द यूनिट. इसको हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? दैट इज कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन विल बी
m minus 1, L minus 3, P4, P2. That will be the dimension for epsilon naught. Now how can we find the value of epsilon naught? Now we have 1 upon 4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 raised to the power 9. Then 1 upon epsilon naught is equals to 9 into 10 raised to the power 9 into 4 pi. And then we have epsilon naught is equals to 1 upon 9 into 10 raised to the power 9 into 4 pi. That will give the value 8.85 into 10 raised to the power minus 12 Coulomb square per Newton meter square. That will be the value for epsilon naught. So epsilon naught is the permittivity of free space, and here the value of epsilon naught is given, and units of epsilon naught is here, and dimensions is m minus 1, l minus 3, t4, a2. Coulomb's law is very most important topic of this chapter, and certainly there will be one question from this chapter will be there in the board exam. न्यूमेरिकली आता है जनरली इससे, तो भी मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं इस चैप्टर से। तो अब आगे हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कूलॉम्स लॉ का भी कोई वेक्टर फॉर्म हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेट अस कंसीडर दिस इज द चार्ज q1 and this is the charge q2, and this is having distance in this direction, this is the distance r12, and in this direction the distance is r21। अगर हम q1 की वजह से q2 पर फोर्स ले रहे हैं तो q2 की तरफ डायरेक्शन लेंगे डिस्टेंस की, और अगर हम q1 पर q2 की वजह से फोर्स ले रहे हैं तो डिस्टेंस लेंगे r2। So now that is force, we can write the force F12 force on q1 due to q2, and F21 is equals to force on q2 due to q1. So this notation you should aware about that. F12 means force on q1 due to q2, and F21 force on q2 due to q1. Now how can we find the F12? F12 is equals to 1 upon F12 vector. F12 vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, that is q1 q2, because charge is a scalar quantity, so there is no need to write the vector or any specified form for the charge. So we have q1 q2 upon r square, means force on 1 due to 2, so r21 square and r21 cap. So why we are having this term r21 cap? तो हमें यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी तो दिखानी पड़ेगी ना, किस डायरेक्शन में। तो अगर हम किसी भी वेक्टर का हमने पढ़ा था r21 वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, या मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r21 स्क्वायर अगर होगा, तो अगर हम r21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो r21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r हो जाएगा। एक टर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, r12 मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर लगा दे रहे हैं यहाँ पर, r12 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r21 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू r। मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर ही होगा ना, केवल डायरेक्शन में अंतर होगा, इसलिए हमने दोनों के ऊपर एरोज लगा रखे हैं। और नोटेशन r12 मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस from q1 to q2, and r21 means distance from q2 to q1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हम सीधा सीधा आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दी है r21 के।
तो इस R21 कैप को फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, R21 कैप हमें पता होता है कि अगर हमें A वेक्टर दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है, A कैप फाइंड करना है, तो हम करते थे A वेक्टर अपॉन क्या होता था, मोड ऑफ A वेक्टर। सेम थिंग वी विल अप्लाई हियर, R21 कैप इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R21 mode. So it will become R21 vector upon R. So if we will put the value of R21 cap in this equation, in the above equation, then we will get F12 vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into R21 cap upon R. Then the formula will become F12 vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon RQ and R21 vector. This is the one notation only, F12. Now similarly F21 vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon RQ R12 वेक्टर। बस इस चीज का ध्यान रहे, F12 ले रहे हैं तो R21 आएगा। क्यों? अब इस चीज का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी ना। अब इसकी वजह से जब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी तो हम यही वाली लेंगे ना, तो R21 आ जाएगा। Q12 यानी कि F12 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स F21, F21 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो वन की वजह से फोर्स टू पर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस डायरेक्शन की वजह से डिस्टेंस लेंगे R12, तो इसलिए हमारे पास दोनों में थोड़ा सा, बस थोड़ा ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ R12 वेक्टर। सीधा सा हमें पता है R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस R21 vector. If we will put this value here, then we will get F21 vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon RQ into माइनस यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये आ गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा R21 vector. So this is the value of F12. See this equation, this is the value of this, then we have F21 is equals to minus F12, जबकि हमारा ये प्रूफ भी होना चाहिए था, सही है। तो कंडीशन क्या है कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21 या फिर F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12, मींस both the forces will be equal and opposite in nature. So I think क्लियर हो ही गया होगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फॉर्मूला टफ नहीं है कूलॉम्स लॉ का, लेकिन बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। वो कितने तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे वो अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। Now, if we are having two terms, epsilon and epsilon naught, this is permittivity of medium and this is permittivity of फ्री स्पेस, या एयर की बात कर रहे हैं हम तो एयर के लिए बोल देंगे, मतलब हाँ वैक्यूम, फ्री स्पेस का मतलब ये हो जाएगा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लाइक अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम को वाटर में डुबो दे रहे हैं तो जो हमारा फोर्स है वो 1/81 टाइम्स कम हो जाता है वाटर के अंदर। वैक्यूम के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टीज सबसे अच्छे से डिफाइन हो पाती हैं। तो नाउ व्हाट इज द रिलेटिव, अगर अपसिलन आर क्या है, रिलेटिव permittivity, then what will be the expression for the epsilon r, epsilon r is equals to epsilon upon epsilon naught, means the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space is known as the
relative permittivity. Now one more thing is also there, K. K is equals to dielectric constant. मतलब अब चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम है तो उसके लिए हमें कांस्टेंट भी हमने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो k means k is equals to ratio of, we can also say that the ratio of force, electrostatic force between the charges in air to the force between electrostatic force between two charges in when the medium is filled with any material. Or we can also say that the ratio of force of attraction or repulsion between two point charges are separated by a distance in vacuum to the force of interaction between the same charges separated by the same distance in a medium. अगर हम बात करें K की, वाटर के लिए जो K है वो 81 हो जाएगा. तो अगर वाटर के लिए 81 है तो अगर मीडियम में हमें फोर्स फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन के. तो कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन 81. मतलब अगर हम कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मान लिया मतलब एक चार्ज हमारे पास Q1 ये था, दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 ये था, दोनों किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड थे. अगर इस पूरे सिस्टम को हम किसी पानी में डुबो तो वाटर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या 81 आएगा. तो अब मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा वो कितना हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन 81 टाइम्स हो जाएगा. मतलब 1 अपॉन 81 टाइम्स हमारा जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो मीडियम का चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो भी फोर्स है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग. नाउ in the next topic I am going to discuss linear charge density, मतलब charge density के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, that is charge density. Charge density में हमारे पास there are three types of charge density. One is linear, second one is surface, third one is volume. Linear charge density is notated by lambda, surface charge density is sigma, and volume charge density rho. Lambda is equals to charge Q upon L. Sigma is equals to Q upon surface area, and this is Q upon volume. तो अब कंडीशन क्या है कि अगर हम जैसे कि इनफाइनाइट सिंबल, हमें पता है कि हम किसी छोटे से पैच के लिए अगर ले रहे हैं, हमारे पास बॉडी थी, इतने छोटे से पैच के लिए ले रहे हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में लेंगे. तो डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, यही तीनों चार्ज डेंसिटीज लैम्डा इज इक्वल्स टू dq upon dl, then we have dq is equals to lambda dl. This is for the linear one. Second one, surface. Surface means sigma is equals to dq upon ds. Then it will become dq is equals to, we can say that sigma is equals to dq upon ds, and dq is equals to sigma ds. For volume, it will become rho is equals to dq upon dv, and we can also say that dq is equals to rho dv. So for in if we want to convert our formula in differential term or integral term, then we will apply these terms and form. Now I am going to discuss force due to continuous charge distribution. Means due to linear charge distribution, I am having the formula F is equals to integral close integral length 1 upon 4 pi epsilon naught. Here not close integral, the 0 to L.
1/4 epsilon naught dq इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो जो चीजें कांस्टेंट है वो हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। 11th में हमने इंटीग्रल करना सीखा था, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught 0 to L and it will be dq over r square। तो अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमारे पास था dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो लैम्डा dl हो जाता था। तो अब f इज इक्वल्स टू दैट विल बी क्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught। ये कितना हो जाएगा 0 टू L, dq की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। Similarly, for this is for linear surface charge distribution q naught upon 4 pi epsilon naught 0 to s lambda ds over r square। And for the another one fv volume charge distribution q naught upon 4 pi epsilon naught 0 to v, uh, this is not the lambda, this is sigma, sigma ds for surface charge. No, this is lambda and this is sigma surface charge distribution, and this is rho, rho dv upon r square। so these are the charge distribution मतलब form force electrostatic force between two charges due to continuous charge distribution, like for linear charge distribution, for surface charge distribution and for volume charge distribution। जैसे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि अभी तक तो हमने भी जो पढ़ा कूलॉम्स लॉ केवल दो चार्जेस के लिए पढ़ा है, लेकिन अगर हमारे पास टिपिकल कॉम्बिनेशन आ जाए, दो से ज़्यादा चार्जेस आ जाए, तो कंडीशन क्या होगी कि वो जितने भी चार्ज मतलब फोर्सेस निकल करके आएंगे उन सब का हम वेक्टर सम लेने वाले हैं। दिस इज फोर्स F2, दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F3। अब ये निकल करके कैसे कैसे आ रहा है, कंडीशन देखो। हमारे पास Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस थे जो कि Q नॉट से मतलब जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है R1, R2, R3 और R नॉट है। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस हो गई Q नॉट और Q1 के बीच की कितनी R1 माइनस R नॉट, और मतलब पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। तो मेन कंडीशन क्या है यहाँ पर, सबसे पहली चीज Q1 Q नॉट की वजह से Q1 Q नॉट पर Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F1 आएगा, Q नॉट पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F2 आएगा, और Q नॉट पर Q3 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या आएगा F3 आएगा। सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है, तो हमारी कंडीशन ये निकल करके आ गई थी। तो अब यहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे, अब जो हमारा फोर्स निकल करके आएगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास हैं तो n नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए हमारे पास हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस अप टू Fn वेक्टर। सभी का हम वेक्टर फॉर्म लेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन है भी, ट्रायंगल के इस कॉर्नर पर Q1 चार्ज है, इस कॉर्नर पर Q2 चार्ज है, इस कॉर्नर पर Q3 चार्जेस है। अब एक सेंटर में हमने चार्ज रख दिया, अब बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा टोटल। इसकी वजह से इस पर फोर्स फाइंड करो, इसकी वजह से फोर्स फाइंड करो, इस पर इसकी वजह से फोर्स फाइंड करो। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सारे के सारे चार्ज इक्वल रखे हुए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। ये एंगल हमें पता चल जाएगा। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था। F1 F2 के बीच रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2
cos थीटा। ये हो जाएगा, इससे हमारा ये एफ डैश निकल करके आ जाएगा जो कि किसी इस डायरेक्शन में होगा एफ डैश। अगर ये दोनों डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी ये फॉर्मूला लगा लो, एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ थ्री स्क्वायर प्लस टू एफ डैश एफ थ्री कॉस थीटा। दोनों के बीच का एंगल लगा लो। तो कंडीशन क्या है कि पहले हम किसी दो के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको तीसरे के साथ कंपेयर करा देंगे। तो मेन है इसमें कि हमें सबसे पहली चीज कूलॉम्स लॉ समझ में आना चाहिए, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझ में आना चाहिए, और हमें कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड सेंट्रल, जैसे कि कूलॉम्स लॉ क्या है, सेंट्रल फोर्स है, और इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें समझ में आना चाहिए। तो इस कूलॉम्स लॉ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स एंड समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स।